सुमित्रा महाजन की मौजूदगी में करेंगे। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर और भारतीय संविधान के महत्व को बताने के लिए, भारतीय संविधान की कितना संप्रभुत्व संविधान है, किन किन देशों के माध्यम से ये लिया गया और इसकी संरचना कैसे हुई, ये तमाम सारी जानकारी भारतीय पीढ़ी को समझाने के लिए दी गई है। सीधे लिए चलते हैं आपको पुस्तक विमोचन समारोह में। Distinguished members of Parliament, members of the Speaker's Research Initiative, ladies and gentlemen, I heartily welcome you all to this function being organized by the Lok Sabha Secretariat to release two publications on Constitution of India, namely updated edition of the Constitution of India and making of the Constitution. This book release function is a part of a chain of events initiated by Honorable Speaker Lok Sabha to commemorate the Samvidhan Divas, which is celebrated on 26th of November every year. To begin with, 4 workshops were organized on the last 2 days on some major aspects of the Constitution of India, including the preamble, the soul of the Constitution, separation of powers, fundamental rights and duties, and federal structure of our polity. These workshops had some of the most knowledgeable legal luminaries as the resource persons and were attended by members of both the houses. The workshops were moderated and coordinated by a most eminent person, retired Justice Kokje and ex-governor. As a part of the same series of events, this book release function has been organized. On this auspicious occasion, I would request the Honorable Speaker Lok Sabha to felicitate the Honorable Prime Minister who has spared his valuable time. I would now request Secretary General Lok Sabha Shri Anup Mishra ji to felicitate the Honorable Speaker Lok Sabha. I would once again request Secretary General Sir to felicitate Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha. I would now request Secretary General Sir to felicitate Honorable Deputy Speaker Lok Sabha. The Constitution of India being released today is updated to the 101st Amendment, that is the one pertaining to the goods and services tax, which would take us into a one country, one tax regime. I would now request the dignitaries to release the Constitution of India. The second publication, Making of the Constitution, is a very elaborate and detailed account of how the Constituent Assembly gave shape to the Constitution of India. I would now request the dignitary to release the publication, Making of the Constitution. I would now request Honorable Speaker Lok Sabha to kindly address the distinguished gathering. व्यासपीठ पर विराजमान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, व्यासपीठ पर विराजमान हमारे डिप्टी चेयरमैन
और मेरे साथी डिप्टी स्पीकर थम्बी दुराई जी, यहाँ हमारे कई मंत्रीगण भी उपस्थित हैं, हमारे दोनों साथीगण संसदीय कार्यालय मंत्री भी उपस्थित हैं, हमारे SRI के सदस्य भी उपस्थित हैं और सभी मेंबर पार्लियामेंट्स और जो भी उपस्थित सभी बंधु भगिनी। वास्तव में कल हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन डे हमने लास्ट ईयर हमारी सरकार ने डिक्लेयर किया था और इस बार हम सोच रहे थे कि ये कैसे मनाएं। और उस समय मन में एक बात आई, हमारे SRI के सदस्य, हमारे जस्टिस कोकजे थे, अभिलाष खांडेकर, राहुल देव जी और बाकी भी हमारे सदस्य उपस्थित थे और एक चर्चा चली। एक बात उस समय ध्यान में आई, मैंने कहा जब हम पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट में आते हैं, चुनाव जीत करके आते हैं, तो हर मेंबर को एक ब्रीफकेस दी जाती है। ब्रीफकेस में बाकी कुछ नहीं रहता, लेकिन रूल्स बुक रहते हैं, पार्लियामेंट के रूल्स बुक और भी पार्लियामेंट के संदर्भ में जानकारी, और साथ ही साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी रहती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी हर एक के साथ रहती है। जिन्होंने, मेरे जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने LLB किया हो, तो मुझे लगता है हमने कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर देने के लिए उसका अभ्यास किया कि 5 प्रश्न आएंगे, वो सॉल्व करना है, पास होना है। लेकिन कभी कभी मन में आता है पार्लियामेंट मेंबर इतने व्यस्त रहते हैं, तो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, चर्चा तो होती रहती है, मगर कई ऐसे पहलू रहते हैं कि जिसको हमें पढ़ने का समय मिले, नहीं मिले, इतना अंदर तक जाके समझने का समय मिले। और इसलिए हम लोगों ने तय किया था कि इस बार हम ऐसा करते हैं, SRI के द्वारा एक ऐसी सीरीज चलाएंगे, उसमें कई रिटायर्ड जजेस भी आएंगे, कई अच्छे एडवोकेट आएंगे, कई और लोग आएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन पर अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करेंगे पार्लियामेंट मेंबर के साथ। हालांकि हम बहुत दिन अभी इसको वी विल कंटिन्यू इट, हमारे जस्टिस कोकजे और सभी लोगों ने एक 10-12 सब्जेक्ट हमने निकाले थे। आपने जैसे अभी सुना, अभी 2 दिन तक हमने 4 सब्जेक्ट पर चर्चा की और मुझे आनंद हुआ। माननीय फली नरिमन जी उपस्थित थे, आए थे एक लेक्चर देने के लिए। जस्टिस रिटायर्ड चौहान जी, BS चौहान, वो आए थे। हमारे रविशंकर प्रसाद जी आए थे, हमारे अरुण जेटली जी आए थे और माननीय कोकजे जी ने उसको कोऑर्डिनेट किया पूरा, और बाकी SRI के सदस्य और पार्लियामेंट मेंबर्स ने भी बहुत रुचि ली। प्रश्नोत्तरी हुई, ये पूरा हमने लोकसभा पे डायरेक्ट टेलीकास्ट भी किया। और आज हम एक छोटा सा काम, हालांकि ये भी मैंने कहा अभी चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अब तक हमारी ही एक ऐसी संविधान है जिसमें हम अमेंडमेंट करते रहते हैं आवश्यकता अनुसार। तो अभी तक हुए अमेंडमेंट की एक अपडेट कॉपी और उसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन इन मेकिंग, जब वो चल रही थी, क्या विषय चले होंगे, कुछ भाषण, कुछ फोटोग्राफ्स, अभी वो भी पूर्ण नहीं है। हम कल ही थोड़ा सोच रहे थे कि कई मेंबर्स ने सुझाव दिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अलग अलग विषयों पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। हम ये भी, हमारे अहलुवालिया जी उपस्थित हैं, उनका भी प्रयास रहा कि एक डिजिटल रूप में वो हमारे वेबसाइट पे भी रहे, वो भी आएगा, आ ही रहा है। लेकिन अलग अलग विषयों पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई जो चर्चा विस्तृत रूप से किस प्रकार से हम आगे भी प्रकाशित करें, वैसे उसके 5 खंड ऑलरेडी प्रकाशित है, मगर छोटे छोटे विषय, इसमें एक थोड़ी सी किताब किसी विषय पे हम पढ़ना चाहे तो वो मिले, ऐसा हमारा प्रयास भी आने वाले साल में रहेगा। आज हमें मन में आया कि हम केवल ये 2 किताबों को हम समर्पित करें आप सबके लिए, और हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया। वास्तव में उनका बहुत बड़ा दौरा है, यहाँ से जाएंगे पंजाब, तो पंजाब से जाएंगे हैदराबाद, और बहुत ठीक है, मगर हमने उनको कहा नहीं, आपका आना भी उतना ही ज़रूरी है। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट, हमारा निवेदन मान लिया। हमारे राज्यसभा के हमारे डिप्टी चेयरमैन
वो भी सतत हमारे साथ रहते हैं हर एक अच्छे काम में। हमारे थम्बी दुराई जी, इन सब लोगों ने यहाँ रिक्वेस्ट में, और आप इतनी सुबह यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। एक बहुत अच्छे मौके पर हम सब लोग, और आगे भी कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे देश की आत्मा है ये, और इसलिए जितना उसके बारे में चिंतन करें उतने हम प्रगल्भ होते जाएंगे। मेरा पूरा विश्वास है इस सभी कार्यों में आप सभी का साथ हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद। Thank you, Madam Speaker. I would now request Honorable Prime Minister to address the distinguished gathering. लोकसभा के स्पीकर आदरणीय सुमित्रा जी, राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर श्रीमान प्रोफेसर कुरियन जी, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर श्रीमान थम्बी दुराई जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाना 2015 से प्रारंभ किया। कल्पना ये है कि हमारी नई पीढ़ी इस संविधान के साथ, उसकी प्रक्रिया के साथ, उसके उम्दा उद्देश्यों के साथ कनेक्ट रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सब कुछ चलता है लेकिन कैसे चलता है पता ही नहीं हो, और ऐसी चीजों का एक निरंतर पुनः स्मरण आवश्यक होता है। और जब मूलभूत तत्वों का बार बार स्मरण करते हैं तो तत्कालीन समय के संदर्भ में करते हैं। जिस विषय का अर्थ आज से 40 साल पहले होता होगा, हो सकता है उसी बात का अर्थ 10 साल के बाद अलग रूप में दिखेगा। एक प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट होता है, लेकिन वो तब होता है जब इन मूलभूत चीजों के साथ हम हर चीज तो कसते रहेंगे, तोलते रहेंगे। हमारे स्कूल कॉलेज के सभी बालकों को संविधान का प्रेम्बल कम से कम साल में एक बार सामूहिक रूप से उसका पठन हो, उद्घोष हो, व्याख्या हो। इससे लाभ ये होगा कि संविधान के महात्म्य का सामान्य जीवन में एक स्थान बनेगा। बहुत कम देशों के जीवन में ऐसी घटना शायद घटती है कि जिसमें संविधान का उल्लेख बार बार आता है। लेकिन भारत एक देश ऐसा है कि जहां जब जब हम संविधान का स्मरण करते हैं, हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का पुण्य स्मरण साथ साथ याद आता है। यानी बाबा साहब और संविधान, संविधान यानी बाबा साहब यानी संविधान, ऐसी जीवन की सिद्धि किसी भी व्यक्ति के जीवन में असंभव है जो बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन में हम आज अनुभव कर रहे हैं। बाबा साहब ने नहीं कहा था, उनके कालखंड में शायद किसी ने उतना रिकॉग्नाइज भी नहीं किया होगा, लेकिन जैसे समय बीतता गया हम सबको लग रहा है कि कितना महान काम हम लोगों के लिए हुआ है। संविधान, समय ऐसा बदला है कि संविधान में से हर कोई अपने अधिकार ढूंढता रहता है, अपने अधिकारों को और अधिक हवा भरने का भी प्रयास करता है। और बड़े चतुर लोग
संविधान को ही आधार बना करके अधिकार का दुरुपयोग करने की हद तक की कभी कभी सीमाएं लांघ देते हैं। इससे एक एनार्की पैदा होती है। और बाबा साहब आम्बेडकर ग्रामर ऑफ एनार्की की बात करते थे। ये हम सबका दायित्व होता है, नागरिक हो, शासन व्यवस्था हो, सरकार हो, शासन व्यवस्था के भिन्न भिन्न अंग हो, हर एक के बीच तालमेल बिठाने का सबसे बड़ा अगर फोर्स है तो हमारा संविधान है। लुब्रिकेशन करने की ताकत भी है तो संविधान में है, रक्षा करने की ताकत है तो भी संविधान में है। और इसलिए इन संविधान के आत्मा के साथ हमारा जुड़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ धाराओं के साथ जुड़ने से बात चलती नहीं है। स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसलिए आज उसकी प्रोसेस की जो किताब निकली है वो शायद स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उस एक पन्ने को खोलने के लिए शायद हमें काम आ सकता है। तो मैं इसका भी स्वागत करता हूं। ये बात सही है कि देश आजाद हुआ कर्तव्य भावना की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति के कारण। देश का हर नागरिक आजादी का आंदोलन को अपना कर्तव्य मानता था। देश आजाद होने तक कर्तव्य का भाव इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा था जो बेमिसाल था, और शताब्दी से भी अधिक समय तक वो भाव लोग जीते थे। लेकिन आजादी के तुरंत बाद उस ऊंचाई से अचानक हम ऐसे नीचे आए कि कर्तव्य का सारा भाव अधिकार में परिवर्तित हो गया, और अधिकार, हक, मेरा क्या, इसने इस प्रकार से जीवन को ग्रसित कर लिया कि कर्तव्य का लोभ होता चला जा रहा है। हम संविधान के माध्यम से कर्तव्य और अधिकार का संतुलन कैसे बिठाएं, देश के सामने चुनौती है। और उस दिशा में इस प्रकार के प्रयत्नों से रास्ते खोजे जा सकते हैं। हम 26 जनवरी बड़े गर्व के साथ मनाते हैं, लेकिन हम न भूलें कि 26 नवंबर के बिना 26 जनवरी अधूरी है। 26 जनवरी की ताकत 26 नवंबर में है, और इसलिए इस 26 नवंबर का संविधान दिवस के रूप में नई पीढ़ी के लिए विशेष रूप से उसका पुण्य स्मरण करते हुए उसकी बारीकियों को जानने का प्रयास, अलग अलग जगह पे अलग अलग काम हो, करते रहना चाहिए। ऑनलाइन कंपटीशन हो, कभी संविधान पर बालकों के लिए ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो, यही चीजें हैं आखिरकार लोगों को इसके साथ जोड़ती है। इन दिनों भ्रष्टाचार, काला धन, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई देश लड़ रहा है। देश का सामान्य नागरिक इस लड़ाई का सिपाही बना है। उसको लगता है कि 70 साल तक इसी कानून नियमों का दुरुपयोग करने वालों ने देश को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। संविधान कानून का दुरुपयोग करके किया है। इस सरकार के इस निर्णय के संबंध में बहुत कम आलोचना हो रही है, लेकिन कुछ लोगों की आलोचना क्या है? आलोचना यह है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। मैं समझता हूं कि मुद्दा यह नहीं है
कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। दुख इस बात का है, अगर उनको एक 72 घंटे भी तैयारी करने के लिए मिल जाते तो वाह वाह, मोदी जैसा कोई नहीं। कितना बड़ा अहम कदम उठाया। और इसलिए फिर भी इतना बड़ा देश है, निर्णय बहुत बड़ा है। देश का उज्जवल भविष्य देखने वालों से इतनी ही अपेक्षा है कि आइए हम सब मिलकर के सामान्य मानवी की कठिनाइयों को दूर करें। इस महायज्ञ में सफल होकर के विश्व के नाम सामने भारत को एक ताकतवर देश के रूप में हम उभारें। सारा दुनिया जब सर्वे होता है कि भ्रष्टाचार की कतार में बहुत अग्रिम पंक्ति में भारत का नाम नजर आता है, भारत को नीचा देखना पड़ता है। हमने गर्व से माथा ऊंचा करना है और इसलिए फैसले लेने होते हैं और फैसलों का अनुपालन करके सिद्धियां भी प्राप्त करनी होती है। और मैं निमंत्रण देता हूं सभी राजनीतिक दलों को, सामाजिक संस्थाओं को, मीडिया को। दूसरा, डिजिटल करेंसी। हर किसी को उसके पैसों का हक है, हर किसी को उसके पैसे उपयोग करने का हक है, कोई रोकता नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार नोट हाथ में हो तभी उपयोग हो। आज व्यवस्थाएं बहुत उपलब्ध है। आप अपने मोबाइल फोन से भी अपने सारे रुपये जहां खर्च कर रहे हो कर सकते हो। आपके पाई पर आपका हक है। मैं इस माध्यम से, जब संविधान की चर्चा हो रही है, संविधान इन व्यवस्थाओं का भी रक्षक है। मैं देशवासियों से और खास करके समाज का नेतृत्व करने वाले हर वर्ग से, मैं मीडिया से आग्रह करता हूं, जिस देश के पास 65% नौजवान हो, 35 से कम उम्र के नौजवान हो, जिस देश में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन हो, जिस देश में अब टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन से भी कारोबार करने के लिए सुविधा उपलब्ध हो, सभी बैंक की अपनी ऐप हो, तो हम क्यों ना लोगों को प्रेरित करें, लोगों को प्रशिक्षित करें। और ये कोई कठिन काम नहीं है। जब आज हम व्हाट्सएप कहां सीखने गए थे, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के, आईटी कॉलेज में जाकर के, अनपढ़ भी अनपढ़ आदमी को मालूम है कि व्हाट्सएप कैसे देखना, व्हाट्सएप कैसे फॉरवर्ड करना। जितनी सरलता से व्हाट्सएप फॉरवर्ड होता है, उतनी ही सरलता से हम शॉपिंग भी कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। देश का उज्जवल भविष्य के लिए हमने एक ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है, डिजिटल करेंसी की ओर जाने की आवश्यकता है। और हिंदुस्तान की 500 शहर इस एक हफ्ते में अगर चाहे तो इस काम को कर सकते हैं। आपको हैरानी होगी, 8 नवंबर के इस निर्णय का सबसे बड़ा परिणाम का फायदा किसने उठाया? मैंने कल हिसाब लिया कुछ नगरपालिका, महानगर पालिकाओं का। बहुत कम, इन्हीं की नहीं नगर पालिका, महानगर पालिका, कोई 40-50 का मुझे बताया गया। पहले 3-3.5 हजार करोड़ टैक्स आता था। 8 नवंबर के बाद 13,000 करोड़ उनके खजाने में जमा हो गया। ये पैसा किसके काम आएगा? उस गांव के गरीब बस्ती में कहीं रास्ते बनेंगे, कहीं बिजली लगेगी, कहीं पानी के नल लगेंगे। एक समाज जीवन में क्रांति की दिशा में काम बढ़ रहा है। और इसलिए राजनीति के ऊपर भी समाज हित के बहुत काम करने होते हैं। संविधान हमें वो प्रेरणा देता है। संविधान हमें हमारी विरासतों का संभालने की जिम्मेवारी देता है। लिखा हुआ है उसमें, हमारी इस महान विरासत की संभालना ये संवैधानिक हमारी जिम्मेवारी है। आइए हम सब मिलकर के बाबा साहब आंबेडकर ने जो महान कार्य किया है, उसके शब्दों को और भावों को पीढ़ी दर पीढ़ी समयानुकूल संदर्भ में
हम उसको जी के सीखें, जीना सीखें, जी करके दिखाएं और देश को हर पल नई ताकत, नई ऊर्जा देते रहे। मैं सुमित्रा जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि इस बार पार्लियामेंट नहीं थी, 26 तारीख को छुट्टी थी, फिर भी उन्होंने इस संविधान दिवस के महात्म्य को बरकरार रखने के लिए इतना बड़ा प्रकल्प किया। स्टेट में भी उसका इनिशिएटिव लिया गया, स्कूल कॉलेजेस में इनिशिएटिव लिया गया और धीरे धीरे करके ये भी एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में बनेगा, मुझे विश्वास है। मैं इस समय मुझे आने का अवसर मिला, मेरी समय की कठिनाई के कारण आपको भी जरा जल्दी जल्दी आना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you, Honorable Prime Minister, for such heart-touching words which will go a long way. I now request Honorable Secretary General to kindly give a vote of thanks. मंच पे आसीन माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, उपाध्यक्ष राज्यसभा डॉक्टर कुरियन जी, उपसभापति लोकसभा डॉक्टर श्री थम्बी दुरई जी,